गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। ममता बनर्जी ने झूलन उत्सव और रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए कहा है कि तीसरी लहर की आशंका के कारण अभी लोकल ट्रेन चालू नहीं की जा रही है। আজ থেকে ঝুলন শুরু হচ্ছে, ঝুলন পূর্ণিমা। সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। জন্মাষ্টমী আছে, এরপর সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। আগাম রাখি বন্ধন আসছে। যেহেতু অনেক সময় কোভিডের জন্য হাতে হাত মেলানো যায় না, তাই রাখি বন্ধনের জন্য আমরা রাখি না দিয়ে ইউথ স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা কত দিচ্ছি রে? 6,35,000 আমরা মাস্ক দিচ্ছি। রাখি বন্ধনের গিফট হিসেবে উঠে যাচ্ছে। রাখি বন্ধনের গিফট হিসাবে 6,35,000 মাস্ক আমরা দিচ্ছি। তাছাড়াও পুলিশের মতো করে, অন্যান্যরা অন্যান্যদের মতো করে। অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, অনেক সামাজিক সংগঠন আছে, অনেক সংস্থা আছে, তারা নিজেদের মতোও করে। কাজে রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছাও জানাচ্ছি। আমাদের এখানে সব ধর্ম, সব বর্ণ, সবাইকে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। সবাইকে ভালো রাখাটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। কোভিড আপনারা জানেন যে আমাদের আজকে পর্যন্ত যেটা হিসেব আছে, আজকে পর্যন্ত হিসেবে যেটা আমি জেলাগুলোকে দিলাম, তাতেও টোটাল আজকেও টেস্ট হয়েছে 44,044, তাতে পজিটিভ হচ্ছে 646 আর ডিসচার্জ হয়েছে 660। এবং 646-এর মধ্যে নর্থ 24 পরগনা একটু বেশি আছে। ব্যারাকপুর সাব ডিভিশনটা আমরা স্পেশাল কেয়ার নিচ্ছি, ওখানে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য। ভ্যাকসিন তো আমরা প্রায় 4.25 কোটি দিতে পেরেছি, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন 14 কোটি। প্রাইম মিনিস্টার সেদিনকে বললেন 50% ওপর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যদি আমার রাজ্যে দেখি, আমার প্রয়োজন রিকোয়ারমেন্ট 14 crores, কিন্তু আমি যা পেয়েছি তাতে আমি 3 কোটি সামথিং। এটা আমার স্টেট গভর্নমেন্টের কেনা ভ্যাকসিন শুদ্ধ এই পেয়েছি, আর পাইনি। তার মানে আমি তো 4 ভাগের 1 ভাগ পেয়েছি। राज्य में वैक्सीन की कमी को लेकर ममता ने फिर केंद्र पर निशाना साधा है। दुआरे सरकार में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि वे कैंप में भीड़ न करें। राज्य में 22,000 से ज्यादा कैंप लगाए गए हैं। ये कैंप 1 महीने चलेंगे। ममता ने कहा है कि लक्की भंडार का फार्म कैंप से ही लेना होगा। যার যার পাওয়ার যোগ্য, কেউ কোনো ফর্ম দিলে নেবেন না, একমাত্র ক্যাম্প ছাড়া। দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প থেকে যে ফর্মটা দেওয়া হবে তাতে একটা ইউনিক নাম্বার থাকবে, সেই নাম্বারের ফর্মটাই আপনাকে ফিল আপ করে জমা দিতে হবে। এবং এতগুলো ক্যাম্প চলছে, তাতে আমরা স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে, যেমন আপনারা জানেন বাংলায় একটা প্রবলেম হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ইউবিআই আমাদের এখানে লিড ব্যাংক ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ করে পাঞ্জাব ব্যাংকে এখানে লিড ব্যাংক করে দিয়েছে। আপত্তিটা আমাদের সেখানে নয়, আপত্তিটা হচ্ছে এখানে যত অ্যাকাউন্ট ছিল ব্যাংকের, তাদের একটা আইএফসি কোড ছিল ইউবিআই এর। এখন পাঞ্জাব ব্যাংক নতুন হওয়াতে অটোমেটিক্যালি সেই কোডটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু সেটা না করে এরা আবার নতুন করে কোড দিচ্ছে। এবং সবচেয়ে প্রবলেম যেটা হচ্ছে, ইউনাইটেড ব্যাংকের অনেকে বাংলা ভাষাটা জানতো, যেহেতু দিনের পর দিন লিড ব্যাংক হিসেবে কাজ করেছে বছরের পর বছর। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তাদের ভাষা জানা লোকও রাখতে হবে। ভাষাটা বুঝতে পারছে না, পাবলিক ওই কোডটা বলতে গিয়ে পাবলিকের অ্যাকাউন্ট হচ্ছে না। অ্যাকাউন্ট না হলে টাকাটা জমা পড়বে কোত্থেকে? এটা নিয়ে অলরেডি আমাদের চিফ সেক্রেটারি, ফাইন্যান্স সেক্রেটারি কথা বলেছেন, আমি ফাইন্যান্স মিনিস্টারকেও কথা বলেছি। এটা বাংলার প্রতিটা লোকের ক্ষেত্রে হচ্ছে, শুধুমাত্র যারা ক্যাম্পে গিয়ে অ্যাকাউন্ট করতে চাইছে লক্ষ্মীর ভান্ডার তাদের নয়, সবার হচ্ছে। সুতরাং এটা আমরা টেক আপ করেছি অলরেডি, যে আপনাকে তো বাংলা ভাষা জানা লোক রাখতে হবে। তা নাহলে অনেক গরিব লোক আছে, তারা বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। তো সে কি করে বুঝবে কোন কোড চেঞ্জ না করলে তাকে আবার নতুন করে কোড চেঞ্জ করতে হবে? কোড চেঞ্জ হবে কেন? আমার কথা হচ্ছে, আমি যখন একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করেছি, তো আমার অ্যাকাউন্টটা তো রোজ রোজ চেঞ্জ করবো না। আমি যদি চেঞ্জ না করি, तो সেই কোডটাই তো पंजाब नेशनल बैंक के चले जावे। मध्य प्रदेश के इंदौर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने करीब 9 डीलरों के कब्जे से
50,000 लीटर केरोसिन तेल जब्त किया है। तेल को बड़े टैंकरों में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। लगभग 50,000 लीटर मिट्टी का तेल जब्त किया गया है और उसमें एक आश्चर्यजनक चीज़ ये भी देखने मिली है कि 3 टैंकर ऐसे थे जिनमें जो उनका डीजल का कंपार्टमेंट होता है टैंकर को चलने वाला, उसके अंदर एक छोटा कंपार्टमेंट बना के उसमें ब्लू केरोसिन जो कि खाना बनाने में और गरीबों को देने में यूज़ होता है, शासन ने उसको जानबूझ के ब्लू कलर उसमें मिलाया हुआ है जिससे कि वो उसकी पहचान हो सके। तो वो ब्लू कलर का केरोसिन भी उन तीनों टैंकरों के जो डीजल कंपार्टमेंट था उसमें पाया गया। एक अलग से कंपार्टमेंट बना हुआ था जिससे स्पष्ट है कि डीजल को किसी तरीके से डाइवर्केट करके और वो मिट्टी के तेल को डाइवर्केट करके उससे टैंकर चलाए जा रहे थे और जो गरीबों के बंटन का जो मिट्टी का तेल था उससे गाड़ियाँ चलाई जा रही थी। ये भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए आज 9 डीलर्स के विरुद्ध FIR कराई जा रही है और 50,000 लीटर मिट्टी का तेल हमने जब्त भी किया जो इनके पास था और इसमें गंभीर है प्रशासन और शासन। कलेक्टर महोदय ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। LPG के दाम में पेट्रोलियम कंपनीज ने एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। नॉन सब्सिडाइज्ड डोमेस्टिक LPG सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया श्रीनेट, अलका लांबा और राधिका खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया। क्या आप कहती हैं कि कुछ भी कर लीजिए, सड़कों पर आ जाइए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे नहीं और उल्टा LPG गैस सिलेंडर के दाम आप 25 रुपए बढ़ा भी रहे हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र को खुली चुनौती केंद्र की मोदी सरकार से दी जा रही है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था आंकड़ों को याद रखिएगा, आंकड़े याद रखेंगे तो सवाल कर पाएंगे। ये मोदी जी के भाषण में आप सुनिएगा। आज हम भी जनता को कहते हैं आंकड़े याद करने होंगे। 2014 में जब देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय LPG गैस के सिलेंडर के दाम कितने हुआ करते थे? 400 और 500 के बीच में थे जब 2014 में मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी। और तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या थी? करिए खुलासा, मैं सबको चुनौती देती हूं। क्यों इस सरकार को चुनौती देने से हम डर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने NDA एग्जाम में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अब लड़कियां भी NDA की परीक्षा दे सकेंगी। आपको याद होगा लाल किले में इस साल 15 अगस्त को PM मोदी ने ऐलान किया है कि अब लड़कियां भी सैनिक स्कूल में दाखिला ले सकेंगी, जिसके बाद अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ में भी बारिश के चलते हालत बिगड़े हुए हैं। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कोरिया जिले से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में मनेंद्रगढ़ इलाके में पुलिस ने नदी से 4 बच्चों को बचाया। बच्चे नदी में नहा रहे थे, तभी अचानक जल स्तर बढ़ने लगा। वे एक चट्टान पर तब तक रहे जब तक कि पुलिस वालों ने 2 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद उन्हें बचा नहीं लिया। आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। खाद्य तेलों की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मोदी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने और इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए का नेशनल मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित एजुकेशन सिस्टम अब फिर पटरी पर तेजी से लौटने लगा है। सूबे में सोमवार से सेकेंडरी स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल के साथ कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अब बेसिक और प्राइमरी स्कूल खोलने की भी तैयारी की जा रही है। बेसिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को रक्षाबंधन के बाद अगले दिन यानी 23 अगस्त से स्कूल भेजने की तैयारी है। इसके बाद 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे भी स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। सालों पहले पाकिस्तान से भागकर भारत में आकर बसे हिंदू शरणार्थी को एक बड़ी खुशी मिली है। दरअसल पाकिस्तान में शोषण से परेशान होकर भारत आए 75 सिंधु रिफ्यूजी लोगों को 17 अगस्त को इंदौर में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। पाकिस्तान से इंडिया आए थे हम लोग 17 साल पहले। कुछ रीजंस के कारण हमें आना पड़ा। वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ थी सिंधी समाज के लोगों के लिए, तो इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ पे वैसा सम्मान और वैसा आदर दिया जाएगा जैसे इंडियंस को मिलता है। बट बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आई और नागरिकता बहुत अच्छे से और जल्दी मिल चुकी है हमें। गुरुवार की सुबह मेरठ और कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों ही जगहों पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप की वजह से अब तक किसी भी तरह का नुकसान को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत के साथ आयात और निर्यात दोनों ही बंद कर दिया है।
फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर अजय सहाय ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान गहरे दोस्त रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश भी कर रखा है। देश में अगले महीने से बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर प्रिया अब्राहम ने कहा है कि बच्चों के लिए कोविड-19 टीका सितंबर से उपलब्ध हो सकता है और 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को टीके का खुराक दिए जाने का ट्रायल जारी है। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी बुधवार की रात को पहली बार दुनिया के सामने आए। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरत UAE से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए अपने भागने के पीछे की वजह बताई। गनी का कहना है कि मैं देश छोड़कर नहीं आता तो कत्लेआम हो जाता, खून खराबा होता। मैं देश में ऐसा होते नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे हटना पड़ा। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक बार फिर LPG की कीमतों में बढ़ोतरी होने से बजट बिगड़ गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया है। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर 859 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि इससे पहले ये 834 रुपए 50 पैसे मिल रहा था। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान अब सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है। इस बीच अब खबर ये आई है कि तालिबान ने सलीमा मज़ारी को पकड़ लिया है। दरअसल सलीमा मज़ारी अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है। ये वो महिला है जिसने कुछ समय में तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आखिरी वक्त तक सलीमा अपने इलाके को बचाने के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ती रही, लेकिन अब तालिबान ने सलीमा मज़ारी को पकड़ लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।